Okay. So this is Muhammad Tala Sarfaraz 61933. Okay. So the y double dash is equal to 2a minus 2c, 2a minus 4c e raised to power minus 2x, 2a minus 4c e raised to power minus 2x plus 4cx e raised to power minus 2x. Then plus 2y dash. So plus 2 into y dash is this one, 2ax plus b plus c e raised to power minus 2x minus 2cx e raised to power minus 2x is equal to 2x plus 5 minus e raised to power minus 2x. Now I will open it. Mahdi Raza 62598 62589.
Final Sharpa 60788. 60788. Maria Sheikh 61615. Okay, I will further open it. 2a minus 4c e raised to power minus 2x plus 4c x e raised to power minus 2x plus 4a x plus 2b plus 2c e raised to power minus 2x minus 4cx e raised to power minus 2x is equal to 2x plus 5 minus e raised to power minus 2x. 2x plus 5 minus e raised to power minus 2x. Now we'll find the value of a, b and c. There are three commons in YP, a, b and c. We'll find the values of a, b and c by equating the coefficients. So I'm rubbing it. Okay. So we will equate the coefficients of x. There are three constants a, b and c, so we must need three equations. Equating the coefficients of x for ax. There is only one term of x. 4a. 4a is equal to 2. So a will be equal to 2 upon 4. So a is equal to 1 upon 2. A is equal to 1 upon 2. Now equating the constants. So one value has been found, one constant has been found. Equating the constants or comparing, equating, you can write even the comparing the coefficients of x. Equating the constants. For equating, you may use comparing. Equating the constants. Two a is constant. 2b is constant. Only these two terms. 2a plus 2b.
this 2a and this 2b. Other are not constant. 2a plus 2b equal to 5. There is only 5. Put the value of a 1/2 plus 2b equal to 5. 2 is cancelled by 2. So 1 plus 2b equal to 5. So b is equal to 5 minus 1. Sorry, 2b. 2b is equal to 5 minus 1 equal to 4. And b will be equal to 4 upon 2. That is 2. So b is equal to 2. Now third, equating the coefficient. Where is c? We have to find the c. There is c, e raised to power minus 2x. So we will equate the coefficient of e raised to power minus 2x. Tavish, 6, 2, 3, 4, 5. 6, 2, 3, 4, 5. Tavish Manzoor. Okay. There is minus 4c. This is x e raised to power minus 2x. We have to take only e raised to power minus 2x. This is plus 2c. This is x e raised to, no. And on the other side is minus 1. On the other side is minus 1. So this will become minus 2c. Is become minus 1. So c will become minus 1 upon minus 2 will be 1 upon 2. All the three values a, b, c has been found. That will be substituted in yp. Substituting in yp. yp में सब्स्टिट्यूट कर देंगे भाई. सो yp क्या आ जाएगा हमारे पास? yp क्या है? a x स्क्वायर. सो 1 अपॉन 2 x स्क्वायर. bx, b 2 है, 2x प्लस सी एक्स. सी है 1/2 x e raised to power minus 2x. ये हमारे पास yp आ गया. ये हमारे पास yp की वैल्यू आ गई. अब हम क्या करेंगे? जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे. तो जनरल सॉल्यूशन विल बिकम y is equal to yc plus yp. So y is equal to yc है हमारे पास क्या है? ये वैल्यू yc वो मैंने ऊपर लिखी हुई है
C1 plus C2 e raised to power minus 2x. C1 yc is equal to C1 plus C2 e raised to power minus 2x. C1 yc की जगह पर मैं लिख दूंगा C1 प्लस C2 e raised to power minus 2x. ये yc की वैल्यू आ गई प्लस yp की ये वैल्यू पूरी डाल दूंगा प्लस 1/2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/2x e raised to power minus 2x. ये हमारे पास आंसर आ गया y का जनरल सोल्यूशन. y is equal to C1 प्लस C2 e raised to power minus 2x. ये yc आ गए प्लस yp 1/2x स्क्वायर प्लस 2x plus 1/2x e raised to power minus 2x. This is the general solution. Shayan Ali 62026. So this is the solution for y. Now question number, that was question number 10. Question number 11. Easy question, I think. Have you understood this question? कुछ इसमें पूछना हो तो बेटा पूछ लीजिए. इस क्वेश्चन में अगर कुछ पूछना है आपने तो पूछ लीजिए. हाँ बेटा कुछ पूछना नहीं है, मिटा दो इसको मैं. क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11. Y double dash minus y dash plus 1/4y. Is equal to,
मोहसिन अली 62008। y डबल डैश माइनस y डैश प्लस 1/4 y इज इक्वल टू 3 प्लस e रेज़ टू पावर x अपॉन 2, 3 प्लस e रेज़ टू पावर x अपॉन 2। So first of all, we'll find yp, और यहां आपने मेंशन करना है भाई yp के लिए आप सॉल्व कर लें इसको, और yc पहले हम yc निकालते हैं, क्योंकि yc के वजह हम yp सपोज करते हैं तो उसको yc के आंसर से कंपेयर करते हैं कि कोई मिलते जुलते तो नहीं है। दे शुड नॉट बी सिमिलर, इवन वन टर्म शुड नॉट बी सिमिलर। क्या हो जाएगा ये y डबल डैश प्लस y डैश प्लस 1/4y इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1/4 इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आसान हो जाएगा ये, 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लें हम। टू एम प्लस 2m कर दें, 4m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2m प्लस 1। तो इनको मल्टीप्लाई इनको ऐड करें तो 4m हो जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 4m स्क्वायर विल बी 4m स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4m स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से हम 2m कॉमन ले लेंगे, इनसाइड विल बी 2m प्लस 1। इसमें से भी 1 कॉमन ले लेंगे, इज इक्वल टू 0। इसमें से 2m कॉमन ले लेंगे, और ये 2m प्लस 1। तो m इज इक्वल टू -1/2, यहां भी -1/2 हो जाएगा। देयरफॉर m इज इक्वल टू -1/2 और -1/2। दोनों आंसर, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे फैक्टर्स हैं, दोनों आंसर सेम होंगे, -1/2। तो yc विल बिकम c1 e raised to power -1/2x प्लस c2x e raised to power -1/2x। ये हमारे पास yc आ गया। अब हम yp ले लेंगे, ये yc की वैल्यू मैं ऊपर लिख देता हूं, ताकि हम अगर इसको मिटा दें तो हमारे पास yp की वैल्यू हम फाइंड आउट करें। तो yc की वैल्यू मैं ऊपर लिख देता हूं। अब मैं yp के लिए इसको सॉल्व करूंगा, और yp
क्या हो जाएगा, वाई पी विल बी इक्वल टू ए एक्स, सॉरी ए, ये कांस्टेंट है सिर्फ, तो ए, और ये ई रेस टू पावर एक्स अपॉन 2 प्लस बी रेस टू पावर एक्स अपॉन 2 प्लस बी रेस टू पावर एक्स अपॉन 2। Yes. So for yp क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 है, ये आ जाएगा कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट आ जाएगा, और ये प्लस है, प्लस का साइन है, प्लस या माइनस हो तो हम प्लस ही डालते हैं बीच में, ई रेस्ट पावर एक्स अपॉन 2 है, तो ये बी ई रेस्ट पावर एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। इसको हम अगर वाईसी से कंपेयर करें, ये C1 ई रेस्ट पावर माइनस 1 अपॉन 2 एक्स है, कांस्टेंट है, यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, तो ये जो है डिस्टिंक्ट है। फिर ये कांस्टेंट इंटू ई रेस्ट पावर एक्स अपॉन 2, यहाँ कांस्टेंट ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2 है, तो ये भी दोनों एक दूसरे साथ नहीं मिलते, डिसिमिलर है, डिस्टिंक्ट है, तो ये यही हम वाईपी सपोज कर लेंगे, हमें कोई और वाईपी लेने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ एक्स से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो उस वक्त किया जाता है अगर यहाँ भी माइनस एक्स अपॉन 2 होता, यहाँ भी माइनस एक्स अपॉन 2 होता, तो फिर ये दोनों एक जैसे हो जाते, कांस्टेंट ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2, ये कांस्टेंट ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2, तो फिर क्या करते हैं हम, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देते, इसको वाईपी जो हम सपोज करें वो तो हम फाइंड आउट कर चुके, उसको कुछ भी नहीं कर सकते, इस जो सपोज कर उसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसको हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देते, जब एक्स से मल्टीप्लाई कर देते तो बी एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2 हो जाता, तो यहाँ भी कांस्टेंट एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2 है, फिर एक और एक्स से मल्टीप्लाई कर देते ताकि ये इसके साथ कंपेयर करना करते, तो इस तरह फिर हम इसको चेंज करते हैं। अब ये इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ ई रेज़ टू पावर एक्स अपॉन 2 और यहाँ ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2, तो ये दोनों डिफरेंट है। अब हम वाई पी डैश निकालेंगे, ए का डेरिवेटिव 0 खत्म हो जाएगा, ये बी ई रेज़ टू पावर एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, इन टू एक्स अपॉन 2 का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाई पी डैश आ गई। अब वाई पी डबल डैश, क्या हो जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 है, इससे मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन 4 हो जाएगा, वन अपॉन 4 भी ई रेज़ टू पावर एक्स अपॉन 2, तो वाईपी डबल डैश आ गया, तो वाईपी भी हमें पता है, वाईपी डैश भी हमने फाइंड आउट कर लिया, वाईपी डबल डैश भी फाइंड आउट कर लिया, ये तीनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसका मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो वाई डबल डैश की जगह ये लिख देंगे 1 अपॉन 4 बी ई रेज़ टू पावर एक्स अपॉन 2 प्लस वाई डैश की जगह ये लिख देंगे प्लस 1 अपॉन 2 बी
e raised to power x upon 2 प्लस 1/4 y है हमारे पास ये a प्लस b e raised to power x upon 2 is equal to 3 plus e raised to power x upon 2. ये मैंने लिख लिया। अब इसको ओपन कर दूंगा, इसको ओपन कर लूंगा। ये 1/4 b e raised to power x upon 2 plus 1/2 b e raised to power x upon 2. So 1/4 plus 1/2 ये 3/4 हो गया। b e raised to power x upon 2 और इसको ओपन करूंगा प्लस 1/4 a और प्लस 1/4 b e raised to power x upon 2 is equal to 3 plus e raised to power x upon 2. अब इसमें से मैंने a b और c की वैल्यू, a और b दो कांस्टेंट है मेरे पास, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं कांस्टेंट्स को कंपेयर कर लेता हूं, इक्वेटिंग द कांस्टेंट्स। 3/4b, sorry, this is b. 1/4b, 1/2b will be 3/4b. तो हम सबसे पहले कांस्टेंट्स को इक्वेट कर लेंगे। इक्वेटिंग द कांस्टेंट्स, वन अपॉन फोर ए है हमारे पास और इक्वल टू 3 है। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो बी ए विल बी इक्वल टू 12। ए की वैल्यू आ गई। अब हम इक्वेट कर देंगे, बी कहाँ है, ई रेज़ टू पावर एक्स अपॉन 2 में। तो ई रेज़ टू पावर एक्स अपॉन 2 के कोएफिशिएंट का इक्वेट कर देंगे। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स अपॉन 2 3/4 प्लस 1/4, 3/4b प्लस 1/4b और इस तरफ क्या है, 1 है। सो 3/4b प्लस 1/4b विल बी b, सो b इक्वल टू 1 आ जाएगा। a और b की वैल्यू निकल आई, a और b की वैल्यू निकल आई। अब जो है हम इस ये वैल्यू 1 a की 12 है और b की 1 है, ये यहां पर पुट कर देंगे। 12 प्लस e रेज़ टू पावर x, b की जगह 1 पुट करेंगे तो e रेज़ टू पावर x अपॉन 2। तो ये मैं मिटा दूं, तो यहां मैं कर लेता हूं। Therefore yp इज इक्वल टू, a की जगह मैंने 12 रख दिया, 12 प्लस b की जगह मैंने 1 रख दिया, 1 इंटू ई रेज़ टू पावर x अपॉन 2 विल बिकम ई रेज़ टू पावर x अपॉन 2, ई रेज़ टू पावर x अपॉन 2।
So y equal to, hence general solution y is equal to yc plus yp. So y will be curved, therefore y is equal to yc हमारे पास है c1 e raised to power -1 upon 2x plus c2x e raised to power -1 upon 2x. ये yc की वैल्यू आ गई है जो मैंने लिखी हुई है, प्लस yp की ये वैल्यू में डाल दूंगा, प्लस yp 12 प्लस e raised to power x upon 2. ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया इसका, विच इज कॉल्ड द जनरल सोल्यूशन. ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया जो जनरल सोल्यूशन कहलाता है. 62725. हंसी रोहान. इस तरह हमने ये करना था. इसके बाद हम